आमे ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯଜମାନ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଏ ପୂଜାଟା କରିଦେବ କିମ୍ବା ତାର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାଟେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାକୁ ନାଇଁ ମିଳିବାର କିମ୍ବା ସେ ତୋତେ ଡାକିଛି, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ତାକୁ 100% ରାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ପୂଜାଟା ତ କରିଦେବା, ସେ ଡାକିଦେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମେକାନିକାଲି ପୂଜା କରବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଭାବ ଭକ୍ତି ସହିତ ନିଜର ପାଖରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ, ପୂଜାଟା କରାଯିବ। ଏବଂ ସେଇଠି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜାଟା କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। କାରଣ ଆମର ଯଜମାନ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଯାହା କଷ୍ଟ ଅଛି ସେଠୁ କେମିତି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସେଟା କ୍ଲିୟର। ଏବେ ସିଏ ତାର ଜାତକରେ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ରାହୁ ଶାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାହୁ ମହାଦଶା ଅଛି, ରାହୁ ଶାନ୍ତିଟା କରବ। ତ ତାର ଏତିକି ବୟସରେ ଗୋଟେ ରାହୁ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞଟେ ହେବାର ଅଛି। ଯେତେ ଲେଖା ଅଛି ତ ଠିକ ଆସିଲା। ଆଗ ଫଟାଫଟ ତତେ ତૈୟାର ହେଇଯିବାର ଅଛି ଯେ ରାହୁ ଶାନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ କହିଲା, ରାହୁ ସହଜେ ଶାନ୍ତି ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ତତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ। ଯୋଉ ସମୟରେ ତୋ ଠିକ କାମଟା ଆସିଗଲା, ଯା ସହାକୁ ଦେଖ ଛିଙ୍କ ପକା, ଦେଖ ଛିଙ୍କ ପକେଇଦେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତେ ରାହୁକୁ ଜବବାର ଅଛି। ଏବଂ ରାହୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାହୁର ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିଏ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଯିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ଗୁରୁ କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ତତେ ଯୋଉ କାମ କରିବାର ଅଛି ତାର ପ୍ରି ପ୍ରିପାରେସନଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ହେଲା ତ୍ୟତ୍ ଜନିତ, ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ମନେ ରଖିବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବେପାର ହଉଛି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି। କାଳୀ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯାହିଁ ଗ୍ରହ ମାନର ନାଁ ଆସିଗଲା ତ ତୋର ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ରାହୁ ଜାଣିଦେଲାଣି ଯେ ଏଇ ଶାଳା ବାମନଟା ଆସିବ, ତୁ ନାଇଁ ଜାଣି। ରାହୁ ଇଜ ଦ ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ, ସୁପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ତାର ରାହୁ ଜାଣିଦେଲାଣି, ତୋର ରାହୁ ଜାଣିଦେଲାଣି ଯେ ଇଏ ଯିବ ତା ଠିକି ଆଣି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ତୁ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ତାଠୁ କଣଟା ଆଣିବି। ସିଏ କଣ ଦବ ମତେ? ପାପ ଦବ, ପୁଣ୍ୟ ନାଇଁ ଦିଏ। ଯାହା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଧରବି ପାପ ହିଁ ଧରବି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଦୁସରାର ପାପ ଖାଇବା ଲାଗି। ଆମର ମେନ୍ ଫୁଡ ହଉଛି ପାପ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହିଁ ସେ ତାକତଟା ଦିଆହେଇଛି ଯେ ତମେ ପାପ ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ କେହି ଖାଆନ୍ ନାହିଁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନ କେହି ନିଅନ୍ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଆସିଲେ ଖାଇଲା ମାନେ ଗାଧିକିନା ଯାଆନ୍ ଲୋକ ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଏବେ सब तैयार है, 2 मिनट में से खत्म करो। हाँ विराजी प्रभु। हाँ तो एक्सेप्शनल जिनस कौन, जैसे कर्तार तू पूजाटा करुछु, राहु ग्रहटाକୁ शांति करुछु। এই जो दुईटा जिनस भितरे जजमान सहित ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित का पहला कर्तव्य परस्य हित करोति इति पुरोहित। एबे जितेबले अब हिंदी वाले आ गए तो थोड़ा सा हिंदी भी बोल दे रहा हूं, नहीं तो वो बोलेंगे क्या क्या बोल रहा है। तो सबसे पहला कर्तव्य है कि तुम्हारा सब कुछ उस यजमान का, उस जो आदमी तुमको बुलाया है उसका पूजा में सब कुछ झोंक दो, अपने आप को पूरा समर्पण कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्यूटी है पंडित का, वो ड्यूटी है कि मैं यहां आया हूं तो मैं मेरा यजमान का 100% ठीक करके जाऊं, एक नंबर। दूसरा यह है कि जब तुम उसको पूजा करने बैठ गए तो उसका कल्याण करना है। कितना मात्रा में कल्याण कर सकते हो, तो अपना जीवन का सारा जप तप तपस्या एकदम जितना सारा हर दिन पूजा पाठ यज्ञ कर रहे हो झुको। तुम क्या बेचने आए हो? तुम अपना पुण्य बेचने आए हो। बदले में क्या लेके जाओगे? पाप लेके जाओगे। यजमान तुम्हें क्या देगा ये दिमाग में कॉन्सेप्ट में ढाल दो, तुमको पाप देगा, बदले में तुम्हारा जितना दिन का यप तप यज्ञ जो भी तुम कमाए हो उसको दे के जा रहे हो। बोले ये तो गलत व्यवसाय हो गया भाई, वो उससे हम पाप लेंगे हम उसे पुण्य देंगे। बोला यही धंधा है बनिया का, मतलब पंडित बनिया, यही धंधा है हम लोगों का कि हम कमाएंगे पुण्य। जितना भी तुम देखो अभी 2 घंटा बैठा जब तब ध्यान योग किया, किसके लिए कमाया? अपने लिए।
पंडित अपने लिए का नहीं होता है, पंडित दूसरे के लिए होता है, तो दूसरे को देना है। तो जब करने जा रहे हो तो 2 प्रिपरेशन, एक यू प्रिपेयर फॉर दैट कि तुम्हें ब्रह्मचर्य में रहना है, किसी लड़की लड़का महिला के सामने नहीं जाना है, क्योंकि तुम उसके लिए अभी तुम्हारा प्रिपरेशन चालू हो गया, क्योंकि अभी तेरा फाइटिंग किसके साथ है? राहु के साथ है। तुम्हारा राहु, उसका यजमान का राहु, 2 राहु का फाइट है। तुम उसका राहु का नेगेटिव एनर्जी कितना खींचेगा? अच्छा, तुम जितना पाप खींच सकेगा तुम्हें उतना पुण्य मिलेगा। अब तुम देखो उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका घर में देखो कितना तुम खतरनाक पेशेंट को हैंडल करने जा रहे हो, कितना खतरनाक केस को हैंडल करने जा रहे हो। उसका माँ जल के मर गई, उसका बीबी एक घर में जल के मर गई, उसका भाई उसी घर में एक्सीडेंट होके मर गया, उसका बाप उसके घर से ऊपर नीचे गिर के मर गया, वो खुद एक टांग कट गया। अब आगे खतरा कहाँ है? फिर उसका सेकंड वाइफ, फिर उसका एक बेटी, फिर उसका एक बेटा, और आकाश में आने वाला समय में यही योग फिर से श्रापित योग, पिशाच बाधा योग लग रहा है। एक बात बताओ, सबसे पहले सोचना चाहिए, उसके घर में अगर 4-4 डेथ हुआ, एक का टांग कट गया, जो घटना है उसको कोई नहीं हटा सकता है। भाग्यम फलंति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, ये करेक्ट। लेकिन हम पंडित प्रशमन कर सकते हैं। जब तुम उसमें करने जा रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले ग्रह बाधा देंगे, ग्रह करने नहीं देंगे। तो उसके लिए तुम्हारा प्रिपरेशन, ब्राह्मण का सबसे बड़ा अस्त्र क्या हो गया? गायत्री माला उठा लो बेटा। तुम देख रहे हो 24 घंटा तुम जहां भी जा रहे हो मेरे साथ, इतना देर तुम लोग गाड़ी में बैठे हो, मेरा माला चल रहा है। पंडित का 2 अस्त्र, माला और भाला, शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम। आइए चलो चलो, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ लो, आधा मिनट में बोल रहा हूं मैं, जिस फैक्टर के लिए तुम्हें यहां बैठा उसके लिए बोल रहा हूं। यू गिव 100% गुड टू योर जजमान। तुम बोला कि चतुर्थी में कर देंगे, ठीक है, किसी दिन भी किया जा सकता, लेकिन हमेशा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिना ज्योतिष का कर्मकांड अंधा, ब्राह्मण का हत्याकारी होता है, ब्राह्मण मरता है उसमें। तो तुम देख रहे हो कि मेरा यजमान है, मैं उसको बेस्ट ड्यूटी दूंगा, तो चतुर्थी, चतुर्दशी, नवमी किसमें जाता है? रिक्ता में जाएगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उस भोग को देखो, तिथि भोग कब हो रहा है, कितना घंटा कितना मिनट में, उससे आगे का घंटा में, उसके आगे का मिनट में देखो कि हम इसका काम करेंगे। जैसे तुम अभी गीता यज्ञ कर रहा था, वहां गोरक्षा, नेपाल में कैसे गोरक्षा हो उसके लिए यज्ञ कर रहा था। मैं क्या बोला, ठीक है हम लोग वहां लेट में हो रहा है, यजमान सबको भी, ये लोग कभी काम देखा नहीं है, काम कर रहा है, तुम पहले दिया जला दो, ये लग्न पार होने मत दो, ये लग्न में तुम्हारा अखंड दीप जल जाए, प्रज्वलित हो जाए, फिर ये लोग जो लेट कर रहा है करने दो। फिर तुम हवन रात में करो, दिन में करो, तो यजमान लेट में आए, यजमान बोल रहा है मेरा पैर दर्द, यजमानी बीबी बोल रही है कि हमसे अभी नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप उधर बैठिए, हम काम कर रहे हैं। बट यू गिव योर 100% टू दैट पूजा, क्योंकि हम नेपाल में बीज डालने के लिए आए हैं कि यहाँ अगर गोरक्षा हो जाए, क्योंकि गोरक्षा हो जाएगा तो इस देश में धर्म रक्षा हो जाएगा, इस देश में राजा का रक्षा हो जाएगा, इस देश में धर्म अर्थ काम मोक्ष का रक्षा हो जाएगा, इस देश का मांस मछली अंडा दारू बंद हो जाएगा। तो वो छोटा सा, ये कभी नहीं सोचना कि राम भगवान सेतुबंध बांध रहे हैं और वो छोटा सा गिलहरी बालू डाल रहा है, उसका कोई महत्व नहीं है, बहुत भयंकर महत्व है। इसमें ढीला नहीं होना, इसमें नेगेटिविटी नहीं होना है, क्या रे क्या छोटा सा यज्ञ कर रहे हैं, क्या एक तो कथा करने आए हैं, इसमें क्या धरती उलट जाएगा, क्या उल्टेगा वो तो समय बताएगा। तुम सोचो, आचार्य संजय नेपाल में आता है और नेपाल में शुरू हो गया क्या आंदोलन। तो कोई भी संत महात्मा कहीं भी जाता है तो उस जगह में भूचाल होता है। जीवन में सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद देखा हूँ, वो डॉक्टर पांडियन गायत्री शक्तिपीठ राउरकेला में आ रहे हैं और मेरे ऊपर पैसा बारिश हो रहा है। तो हर एक साधु संत का मोमेंट और उसके जीवन में घटनाएं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो तुम अभी जा रहे हो तो उसके लिए तुम्हारा प्रिपरेशन, एक यजमान को राइट लग्न में काम देना है और राइट काम देना है, और एक बार काम करके दोगे और सक्सेस हुआ, दूसरा कोई पंडित बुलाएगा नहीं, तुम्हें ही बार बार बुलाएगा। तो तुम्हारा प्रिपेयर, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग, आई एम कराटे ब्लैक बेल्ट, मेरे को साउथ एशियन लड़ना है, मेरे को टूर्नामेंट लड़ना है, तो कितना प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे ही कोई भी पूजा को छोटा मत समझो, कोई भी यजमान को छोटा मत समझो, कोई भी कार्य को छोटा मत समझो। हर एक कार्य को कैसे करोगे,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इस भाव से, पूरे कर्मयोग भाव से कर्म को करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है?